ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ रंग, की है रूप? कि मैं वहाँ शीशे में देखने की कोशिश कर रही थी अपने आप को जी मुझे लगा कि मैं 2 बन गई हूँ, जी। लेकिन मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने गई और मैं दिखी नहीं अपने आप को। शीशे में आपने देखा, आपको दिखी नहीं आप? मैं आप दिखी नहीं तो मैं और घबरा गई जी। घबरा गई तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया। तब मैं जोर से, मुझे लगा कि मैं चीख सकती हूँ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ? अब जैसे हमने ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ मतलब परमात्मा ਦਾ, परमात्मा ਰਹਿੰਦਾ किथे है? दीदी ऐसे हैं मतलब बात चल रही है कि कलयुग मतलब ख़त्म होने वाला है, ऐसे कई जगह से आवाज़ निकल रही है, क्या सच में ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ? मैं जब 27-28 ईयर एज में थी मैं आपको रियलाइज यहाँ कर रही हूँ जी। मैं दो जगह कैसे हो गई, ये दो सुशीला कहाँ से प्रकट हो गई? दो सुशीला कैसे प्रकट हो गई। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ BSF ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਘਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਹ ਦੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਨੁਭੂਤ ਤੇ ਸੱਤਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ परमात्मा ने सानू मौका दिता है। तो दीदी सत श्री अकाल, ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इत्थे आ गई। अच्छा, थोड़ा बहुत पंजाबी मैनू समझ आती है, ठीक है जी। क्यों मेरा बर्थ प्लेस गंगानगर दा है। अच्छा जी, ठीक है दीदी सानू इदां दसो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कीता, कि उस दे बारे असीं कुछ गल्लां करनियां, साडे मन दे विच कुछ प्रश्न ने कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कीता कि बहुत ही सारे मन 'ਚ सवाल आ कि आत्मा ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ रंग, की है रूप? सही है।
पाते हैं आत्मा को, क्योंकि हम समझे नहीं आत्मा है क्या। वास्तव में हम लोग तो शरीरों को देखते रहते हैं जी। और मेरे साथ जो हुआ उस समय मैंने जो अपने को दो रूप में अनुभव किया कि जैसे मेरी डेथ की वो घटना हुई तो मुझे लगा कि मुझे उससे जस्ट पहले का सीन था कि मुझे यहाँ पेन हुआ और मुझे लगा चेस्ट में इतना पेन हुआ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिरूंगी। तो पास में ही डबल बेड था, जैसा कि मेरा वो पूरा डिटेल तो आज का अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो वीडियो अलग से है उसमें देख सकेंगे जी। कि मैं उसमें मुझे चक्कर आने लगा तो मुझे लगा मैं गिर रही हूँ, तो मैंने बेड पे अपने आप को गिरा दिया जी। और उसी समय मेरे हस्बैंड को भी आवाज़ चीखी, मतलब हेल्प करो ऐसे बुलाया मैंने उनको। तो जब मैं गिरी उसके जस्ट बाद में क्या हुआ, मेरे को ऐसे लगा कि मैं गिर गई हूँ, आवाज़ आई है धड़ाम जी। और मैं अपने आप को यहीं महसूस कर रही हूँ जहाँ मैं डस्टिंग कर रही थी स्टूल पे। तो वो जो चीज़ थी उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि हम जो हैं शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जी। और मैं आत्मा, वैसे तो ईश्वर ने बाद में और आगे घटनाएं होती गई जीवन में, स्पिरिचुअलिटी की राह पे जैसे मैं बढ़ती गई जी। तो मैंने देखा कि हम आत्मा होती है बिल्कुल सितारे जैसे, सितारे छोटा सा सितारा लाइट का चमकता है ना, आकाश में तारे दिखते हैं जी। तभी देखो कोई मरता है तो कह देते ना वो कहाँ गया, तेरी मम्मी कहाँ गई, वो बच्चे को बहलाने के लिए कहते हैं वो देखो ऊपर तारा बन गई। जी। वो सचमुच सही कहते हैं, पर वो वाले तारे नहीं हैं जी। वो तो फिजिकल मटेरियल के हैं, ग्रह पिंड है। हम होते वैसे ही हैं दिखने में, बिल्कुल लाइट स्टार, छोटा सा बिंदी, और वही हमारे को भगवान ने रचा जब ऐसा था। लेकिन हम बने होते हैं संकल्प और भावनाओं से, थॉट एंड फीलिंग एनर्जी है, कंपोजिशन हमारा ये है। आप समझ सकते हो, मैं अभी लाइव हूँ, आप लाइव हैं, हमारी डेड बॉडी होगी जी। उसमें और हमारे में क्या फ़र्क है। मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, निर्णय करती हूँ, महसूस करती हूँ, डेड बॉडी ये सब नहीं करेगी। नहीं। तो जो प्लस माइनस कर दे अपन, लिविंग माइनस डेड, तो जी। पीछे क्या बचा, सोचना, समझना, महसूस करने की शक्ति। जी। और सोचना, समझना, निर्णय करना, ये सब क्या है, थॉट्स ही तो है। हाँ जी, बिल्कुल। और महसूस करना भावना है। भावना सुख है, दुख है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है, शांति है, ये सब भावनाएं हैं। जी। लेकिन क्या ये दोनों चीजें, विचार और भावनाएं, इन आंखों से दिखती है? नहीं दिखेगी ना। जी। तो इन्हीं को हम देख नहीं पाते, इसलिए हम सोचते हैं कि आत्मा दिखती तो है नहीं, फिर कैसे मान ले आत्मा होती है। पर मैंने वहाँ बिल्कुल बाहर महसूस किया कि मैं वहाँ शीशे में देखने की कोशिश कर रही थी अपने आप को। जी। मुझे लगा कि मैं दो बन गई हूँ जी। लेकिन मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने गई और मैं दिखी नहीं अपने आप को। शीशे में आपने देखा, आपको दिखी नहीं? आप मैं आप दिखी नहीं तो मैं और घबरा गई। जी। घबरा गई तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया। तब मैं जोर से, मुझे लगा कि मैं चीख सकती हूँ, तो मुझे लगा मैं चीखी हूँ, पर आवाज़ नहीं हुई। लेकिन मेरी जो मन की थॉट था, चीखने का संकल्प था, वो पहुँच गया ऊपर वाले तक, और वो रब की कृपा थी जो वो मुझसे कनेक्ट हो गया। परमात्मा आपसे कनेक्ट हो गए, वो शक्ति कनेक्ट हुई। उस टाइम मैं नहीं समझ पाई कि वही कनेक्ट हुआ है, बाद में मुझे पता लग गया कि ये रब कनेक्ट हो गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा तुझे ये जानना है क्या हुआ, तो मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ। तब वो जो घटनाक्रम चला, उसके बाद फिर वो जाना मैंने कि मैं जो बाहर हूँ वो मैं थॉट और फीलिंग्स के साथ अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को लिए हुए बैठी हूँ। जी। मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ नहीं जो मैं बिंदी होती हूँ, क्योंकि मेरे को ये आदत पड़ गई कि मैं तो बॉडी हूँ, तो मैं अपने आप को ये सोच रही कि मैं शेप तो ऐसी होंगी मैं। जी। अब वो मैं दिख नहीं रही हूँ, तो मैं अपने आप को रियलाइज नहीं कर पा रही थी। ठीक पर है। वहाँ मैं सोच रही थी, मैं समझ रही थी, मैं डिसाइड कर पा रही थी, मेरे पास नॉलेज भी था, मैं महसूस भी कर रही थी। दीदी जब आप गिरे बेड पे तो आपके हस्बैंड आए, वो आपने वो पूरा दृश्य देखा कैसे? हाँ, मैं सब देख पा रही थी। जी। मैं सब देख रही थी, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर था कि वहाँ बहुत पीस मुझे लग रही थी। उसका कारण ये था कि वहाँ मेरे पास श्रवण की कर्मेंद्रियाँ नहीं थी, कान नहीं थे। तो मैं समझ कैसे रही थी कि उनकी फेस रीडिंग, लिप रीडिंग, उससे मैं सब समझ पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं सीधा उनको ना यहाँ से यहाँ कनेक्ट होती थी। बड़ा मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी वो मेरे जीवन की। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ?
अब जैसे हमने, अब मैं समझ के साथ ही बताती हूँ कि हमने अपने आप को समझा, हम क्या है, आत्मा। जी अम्मा। ठीक है, लेकिन हम बिंदु रूप सितारे जैसे तो दिखते नहीं है, क्योंकि उस रूप में हम रहते ही नहीं है। जी नहीं, हम रहते हैं इस बॉडी की शेप में, शरीर में रहते कि हैं। मैं तो, मेरा सिर है, मेरे कान है, मेरी आँख है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, जी। तो इसी शेप में रहते हैं। अब बताओ एनर्जी और वो इतना स्प्रेड होके रहेगी अपने जी। आप को फैला के, तो डाइल्यूट हो जाती है ना। बिल्कुल। तो उसका जो एग्जिस्टेंस का लाइट फॉर्म है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, वो अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। योगिया नु देखा तुसी, देखो जो योग करते हैं ना उनके, या जो भगवान को याद करते हैं, उनको ना चेहरे में ग्लो होता है। हाँ जी, एक ओरा होता है जी। वो ओरा फिर से प्रूफ दे रहा है कि वो अपने आप को यहाँ अपनी सोल फॉर्म में, सोल कॉन्शियसनेस में रखने के अभ्यास कर रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को समेट कर इस एनर्जी को यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, जो गीता ने बोला है, यहाँ पे दीदी गीता में लिखा है, हाँ, दोनों आंखों के पीछे बिंदी लगाने का जो स्पेस है ना, हाँ जी, यहाँ से 2 अंगुल अंदर की तरफ, जी, यहाँ पे स्पेस है, जी, वो सोल की साइट है बैठने की, इस शरीर आत्मा वहाँ बैठती है, वहाँ आंखों के पीछे पीछे, और यहीं बैठेगी, तभी तो इन आंखों में जो कांच दिए हैं भगवान ने, एक कांच, हाँ एक गड्डी है, जी, गड्डी, तो इन्ना ने आदे पर पर्दा डाल दो, कोई दुनिया से कनेक्ट ही नहीं होंगे, हम डिस्कनेक्ट हो जाते। देखो हो गए डिस्कनेक्ट। हाँ इतनी बड़ी दुनिया, इतना गार्डन, हम बैठे, 1 सेकंड वास्ते पर्दा डालो आंखों में, जी, और अंदर महसूस होगा कि मैं यहाँ इस शरीर से अलग, सोचने, समझने, महसूस करने वाली शक्ति यहाँ अपने आप को महसूस कर रही हूँ। कितना हल्का लग रहा है। ये मेरा असली स्वरूप है, पर मैं अभी ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप को प्राप्त करने की अभ्यासी नहीं हूँ, जो मेरा अनादि वास्तविक रूप है। मैं देहभान में रहती आई हूँ, इसलिए अपने इस बिंदु रूप को, ज्योति स्वरूप को देख नहीं पाती इन आँखों से, पर बुद्धि से समझ रही हूँ। मैं इस शरीर से न्यारी चेतना, सोचने, समझने, महसूस करने वाली शक्ति यहाँ हूँ। अब धीरे से इन पर्दों को खोलो, आंखों के पलके उठाओ, और जैसे ही हम दुनिया से जुड़ते हैं ना, एकदम से हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हम अंदर वाली चीज़ भूल के बाहर ही कूद पड़ते हैं। जैसे ग्राउंड में प्ले करने चले गए तो अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं जी। और ये कर्मेंद्रियाँ ही दुनियादारी में हमें खेल में इतना डुबो देती है कि हम इसमें ही रम जाते हैं। दीदी बहुत ही ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ तो हाँ, तुसी पूछा थी कि गॉड कैसा है, रब कैसा है। हाँ जी, तो हम जैसे ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप है ना, जी, और बने हुए हैं थॉट और फीलिंग से। जी, हमारा पिता बनाने वाला भी बिल्कुल वैसा ही है, ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप, वो भी चमकता सितारा, इतना सोना कभी नहीं देखा, इतना प्यारा है वो। भैया तुम देख लोगे ना, उस दिन दुनिया देखने की इच्छा नहीं होगी, इतना प्यारा है भगवान। और जो हम चाहते हैं ना जीवन में कि हमें सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, सच्चा प्यार के नुके दे, वो सब ऑर्डिकल है। तो बाहर दीदी वस्तुओं में, किसी की देह में ये प्यार सब झूठा है दीदी? ये झूठा नहीं है, हमें ये ईश्वर ने व्यवस्था बनाकर दी कि हम जो आत्मा का प्यार, जो आत्मिक स्नेह, आत्मिक शांति है, उसको इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से शेयर करें, लेना देना सीखें। इस वास्ते जीवन बीतता है जी, ठीक। हम उसके थ्रू जीवन जीने की विधि ना अपना के फिजिकल मटेरियल पे डिपेंड हो गए। हर चीज में क्या देखते हैं, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया
अभी शादी में आया, बर्थडे में आया, मेरे को भी उसको रिटर्न गिफ्ट करना है। करना किसने है? मैं आत्मा ने करना है। फील किसने कितना? आत्मा ने। बट हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? उनने 100 रुपये का दिता, मैं 150 का दूंगा, या उनने 500 का दिता मैनू, मैं 300 का दूँ, वो दिल छोटा हो जाएगा। दीदी ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? परमात्मा रहता है ऊपर परम धाम से। ਉੱਪਰ ਪਰਮਧਾਮ। ये सितारे, चांद, तारे सब पार करके उसने मुझे अपने पास ट्रेवल करवाया और मैं उसके पास पहुंच गई। बीच में पूरा शायद उसको क्या कहते हैं, आकाश गंगाएं होती होगी ना, बिल्कुल अंधेरा था, डर लगा? डार्क, थोड़ा सा सहमी थी, पर मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो मुझे खींच के ले जा रहा था। अच्छा। और मैं सितारे के रूप में खींच के चली जा रही थी। तो पहले चांद, तारे, रोशनी, सूरज की सारे पार किए, फिर एक डार्क टनल टाइप आया, उसको भी मिली सेकेंड्स में पार हो गई। उस समय मैं सहमी कि ये क्या जगह है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ ले जा रहा है कोई मुझे। लेकिन लास्ट में जैसे ही पहुँची, वो बहुत 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 ऊपर, वो जो था एरिया, वो बहुत प्यारा सा डिम लाइट, लेकिन बहुत प्यारी सुंदर लाल सी रोशनी थी, लाल रोशनी। और वहाँ जो है वो प्यारा सा सितारा चमक रहा था। कितनी आत्माएं दीदी वहाँ पे हैं? एक ही मतलब परमात्मा? नहीं, हम रहने वाले वहाँ के हैं। अब वो तो मुझे ज्ञान आ गया, इसलिए मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ। मैंने वहाँ जो देखा, उस समय ईश्वर दिखाना चाह रहा होगा, वो हम आत्माओं का घर है और वहाँ पे वो रहता है और सामने हम आत्माएं रहती हैं जी। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है हम आत्माओं का, और वहाँ हम आत्माएं रहती है। तो मैं देख तो रही थी कि सब सितारे दिख रहे हैं मुझे, पर मैं उन्हें पहचान रही थी। ये तो मेरी बहन है, हाँ मेरी मम्मी है, वो मेरी फ्रेंड हैगी, वो सितारा ही रहा है, सितारा ही है। तो आप जज कर पर मैं उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ, वो सितारा ना मेरी बहन का सितारा हैगा, मतलब वो इत्थे वो एवं ही दिखती है सितारा। ठीक है दीदी, वो दुनिया मतलब कैसी है? वो जैसे ये स्थूल है, तो वो कैसी दुनिया कैसे दिखती है? रंग क्या है, क्या है वहाँ ना? ये सुनहरा लाल भगवा रंग जो होता है ना जी, ऐसा रंग है। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में भगवा रंग इसीलिए है कि वो हमारे घर का रंग है। सबका जितनी भी आत्माएं रहती, सबका एक ही घर है? एक ही घर है सबका। वहाँ सभी थे, मेरी फ्रेंड सब तरह के थे, मतलब मोमडन्स भी, वो सारी, ऐसे लग रहा है सारी दुनिया की आत्माएं इधर से नीचे गई हैं, सब यहीं है, सभी वहीं थे, और हम सब एक जैसे हैं, सब सितारे हैं। यही हमारा शाश्वत और सनातन रूप भी हमारा यही है। अब शाश्वत तो समझते हैं आप, शाश्वत और सनातन माना जो नष्ट नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो नष्ट, जो हम हैं और जो सदा थे और सदा रहेंगे जी, सत्य स्वरूप हमारा, सत्य स्वरूप। अब आप समझो, फिर से एक बार समझा देती हूँ। मैंने अभी बताया आत्मा है जी, आत्मा का रूप है ज्योति जी, सितारे जैसी बिंदु रूप जी। लेकिन बनावट क्या है? बनावट अभी मैंने बताई नहीं, विचार और भावनाएं। विचार और भावनाएं, विचार और भावनाओं का गुच्छा है ये। आत्मा के अंदर ही मतलब विचार चलते हैं दीदी, है ना? भावनाएं जो भी है सब तो चलता है। हमारे में जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ विचारों के प्रकार है, किस तरह की हमारी थॉट्स है, लाइफ एटीट्यूड के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान के लिए जो हमारे डिफरेंसेस है वो थॉट्स पे है। हमारे स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है। हम बने हुए हैं विचारों से और भावनाओं से। भावना में सबको सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति चाहिए ही चाहिए। और ये 7 गुण होते हैं ना जी, इनके कारण गीता में बोला आत्मा सतोगुणी होती है। ओके दीदी। इनमें जब कमी हो जाती है ना तो हम रजो और तमो पे चले जाते हैं। तो जो मैं विचार भावना हूँ इससे बनी हुई हूँ। विचार भावनाओं आप कट दोगे, गला दोगे, जला दोगे? नहीं, नहीं जलेंगे ना। नहीं। इन आँखों से देख लोगे? नहीं, नहीं देखेंगे। नहीं। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा को महसूस कर सकती है डेफिनेटली। जहाँ विचार भावनाएं हैं वो दूसरी विचार भावना को महसूस करेगी जी। और इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि हम आत्माएं थोड़ा डेवलप्ड किस्म के हैं। ह्यूमन बींग्स वेल डेवलप्ड, सबसे बढ़िया वाली आत्मा है। और जीव जंतु भी आत्माएं हैं। डॉगी पेट रखा है? हाँ जी, रखा है। उसकी आंखों में देखते हो
वो आपकी आंखें देख के समझ जाता है आप प्यार कर रहे हो गुस्सा कर रहे हो। हाँ दीदी बिल्कुल सही वो भी उसमें भी विचार भावना है, वही चैतन्यता, वही सनातन स्वरूप है उसका। जी। और ये हमारा वास्तविक सनातन स्वरूप है जिसको हमें समझना है, जीवन में एडॉप्ट करना है और इसको लाइफ में अप्लाइड रूप में लाना है। हमें बातचीत व्यवहार करते वक्त यही देखना है, जेंडर क्या कहते हैं, क्रीड, रेस, जो भी वर्ण है, रिलीजियस है, वो सब नहीं देखना है। तो दीदी अब हमें तो अंदर वाला चीज देखना है, वो भी सोल है, वो भी सोल है, वो भी सोल है सबके अंदर। सब जो वो तो सोल दीदी दिखती नहीं है, मतलब महसूस करना है। हम है ना, पहले जी। हम अपने आप को महसूस करें, बिल्कुल। मैं हूँ ना सोल। जी। ऐसी सोल सब है। जब आप परमात्मा से मिली तो आपने क्या मांगा क्या? बड़ी आश्चर्य की बात है। और हम जब यहाँ होते हैं दुनिया में तो हम यही सोचते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है और क्या मांगेंगे। लेकिन आश्चर्य ये है कि जब मैं परमात्मा से मिली और जब मैंने जाना और मैंने महसूस किया, अच्छा तो ये है रब, ये वो कितना सोना हैगा, इससे तो प्यार, शांति, शक्ति, वो सब इतना मिल रहा था मुझे जी। कि मेरे को लगा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। जो मुझे चाहिए था जीवन में वो सब मुझे मिल रहा था वहाँ पे, बस यही मिलना होता है। तो वो जब मिल रहा था मुझे तो मैं बहुत भरपूर और संतुष्ट हो रही थी। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, जी। वहाँ करते करते मुझे अचानक से लगा, आसपास का देखा तो मुझे लगा कि मैं 3rd रो में हूँ और आगे वाली रो जो है ना, सोल्स जहाँ बैठी हैं वो ज़्यादा ले रही है उससे, और मैं जो 3rd रो में हूँ तो थोड़ा मुझे उनके कंपैरिजन में कम मिल रहा है। तो मेरी एक ही डिमांड, एक ही इच्छा पैदा हुई वहाँ पे। तो मैंने मन में कहा कि मेरे को ना पहली रो में बैठना है ताकि उससे और नज़दीक सानिध्य को प्राप्त करूँ मैं। ठीक है। उसका मेरे को करीबी चाहिए थी, बस भगवान के और करीब हो जाऊँ। जी। और तभी उसका वर्ड्स आए मेरे पास में कि तुझे अगर पहली रो में बैठना है तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई मैं भी आश्चर्य पड़ गई। तो पर मेरे को यूफोरिया था कि मैं तो MBBS करी हुई, डिग्री लिया हुआ है, मैं तो MD भी कर लूँ। मैंने कहा कौन सी पढ़ाई, मैं बहुत करी है पढ़ाई का, मेरे को बहुत शौक है, मैं कर लूँगी। तो कहता ठीक है कर लेगी तो जा। उसका जा कहना होता था और मेरी जो इवेंट्स थी ना, स्पिरिचुअल जो मीटिंग्स होती थी वे टूट जाती थी, वो बीच में टूट गई। फिर मैं नीचे आई, आके नीचे दुनियादारी को देखा, मैंने कहा ले रब से मिलने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी थी, वो तो पूछा ही नहीं। अच्छा। अब क्या पढ़ाई करूँगी मैं, सब जगह ढूंढती फिरूँ, कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। फिर वापस लग गई उसको ध्यान करने, बात करने के लिए। एक अपॉर्चुनिटी में एक बार और मिल, फिर मेरे को पूछना है मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, वो तो मैंने पूछा नहीं, अब की बार गलती नहीं करूँगी। फिर मुलाकात हुई, फिर उससे सामना हुआ, फिर मैंने पूछा मेरे को ये तो आपने बताया नहीं कि मेरे को पढ़ना क्या है। तब उन्होंने मुझे एक बोर्ड दिखाया, उस पर लिखा हुआ था जो माउंट आबू में लगा हुआ है जी। और वो बोर्ड हमने बचपन से देखा जी। पहले आपने देखा था? पहले बचपन से, मेरे फादर कमिश्नर इनकम टैक्स में थे तो अच्छा। जाते रहते थे माउंट आबू। बचपन में मैं सिरोही से स्कूलिंग करा हुआ है तो आबू जाना होता था। तो वो बोर्ड देखने में आता था, वो लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी। तो उन्होंने दिखाया कि ये बोर्ड है ना, यहाँ जाके तुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। फिर मैं आ गई वापस, फिर आके फिर भी जीवन में सोचती रही कि ये पढ़ाई कैसी होती है, कौन सी। फिर तो वो लिंक जोड़ने शुरू किए मैंने कि यहाँ क्या है और वास्तव में। फिर वो आगे की स्टोरी सारी और भी कई एपिसोड बन जाए, अगर उस इंटरव्यू को अपन यूं लेंगे तो लंबा बहुत हो जाएगा जी। लेकिन हाँ, मैंने जीवन में फिर वो पढ़ाई करी। दीदी ऐसे हैं, मतलब बात चल रही है कि कलयुग मतलब खत्म होने वाला है, ऐसे कई जगह से आवाज निकली है, क्या सच में ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा कुछ? खत्म होना कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन होगा जी। चेंज होगा। ये देखो गीता में भी लिखा है, भगवान ने बताया 3 चीजें परमानेंट है। ये प्लेटफॉर्म धरती परमानेंट है, हम आत्माएं अभी मैंने बताया थॉट एंड फीलिंग एनर्जी से कंपोज्ड हैं, और सितारे हैं। हम सब अविनाशी हैं जी। हमें कोई ना जला सकता, ना मार सकता, ना खंड कर सकता जी। हम अविनाशी हैं, पर इंडिविजुअल एक एक रहेंगे, ऐसा नहीं एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे जी। बोल देंगे कोई किसी को, ऐसा नहीं, बोल नहीं सकते। और रब वो भी एक, वो भी अविनाशी। तो 3 सत्ता संसार में अविनाशी हैं जी। लेकिन अभी हम जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, वेस्ट से भर गए हैं, और जीने में वो 7 गुण खत्म हो गए हमारे, वो सारे अब भगवान आया है, वो ज्ञान दे रहा है, हमें जीने की तमीज सिखा रहा है।
उसको ही धर्म कहते हैं। जी आज इतना ही हो पाएगा। जी, कोई बात नहीं, दीदी के Thank you. पास समय बहुत ओम कम है, शांति। दीदी ने जाना है। ओम शांति। दीदी, सत श्री अकाल।